بالقاسم محمد صلی اللہ محمد وعلى اهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة دائمة على اعدائهم اجمعين من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم ارزقنا في الدنيا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر صلی اللہ محمد. عزیزان محترم، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور آج 7 محرم. ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایام عزا کے چند دن باقی رہ گئے ہیں. ایک تو دامن وقت کو سمجھتے ہوئے وقت پر تشریف لائیں تاکہ مجلس وقت پہ شروع ہو اور ایک سلسلہ رہے. بالکل جلوس وغیرہ ہیں، دیگر چیزیں ہیں، آپ لوگ وقت پہ آئیں گے تو بہت اچھا لگے گا، کیونکہ مجلس کے بعد سیداد علی اکبر کا نوحہ ہوگا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے صلی اللہ محمد کہ جہاں پر شہزاد علی اکبر کی مجلس ہوتی ہے وہاں پر دعاؤں کی قبولیت یقینی ہے. تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. خدا بندہ شہزاد علی اکبر کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. کریم اللہ امام کے صدقے میں اور ان کے فرزند علی اکبر کے صدقے میں ہمیں کربلا معلی کی زیارت نصیب فرما. کریم اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما. بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. تمام علماء کرام ذاکرین الزام کی حفاظت فرما. ہمیں یار عزیز و قارب جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ذات صلی اللہ. بہت شکریہ. عزیزان محترم، آپ کے سامنے سرکار سید الشہداء اور ان کے صحاب کے حقائق اور تاریخ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ایک سوال ہے، جب سے میں نے آپ نے مجالس میں جانا شروع کیا، شرکت کی، ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، توجہ فرمائیے گا. یقین جانیے اگر آپ کی توجہ رہی تو یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں گے انشاءاللہ. کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے یہ سنا ہے کہ امام عالی مقام نے نو کے سنا پر قرآن پڑھا تھا. توجہ چاہتا ہوں، یہ مولا کا جو قرآن پڑھنا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے، زمانے کو پیغام ہے کہ قاتل اور ہے مقتول اور ہے. یعنی قاتل قتل کر رہا ہے، اس کے باوجود شکست قاتل کی ہے، مقتول کی نہیں ہے کہ مقتول نے قرآن پڑھا تھا. توجہ چاہتا ہوں. اب سوال ہے کہ قرآن میں 30 پارے، 114 سورے، کم و بیش 540 رکوع ہیں، 6666 آیتیں تقریباً. تو سوال ہے کہ امام نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ بھائی ایک ایک آیت ہے، ایک ایک حرف ہے. قرآن پورا کا پورا معجزہ ہے. امام چاہتے اس پہ سورہ حمد پڑھ سکتے تھے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شام کا ماحول کوئی مذہبی ماحول تھوڑی تھا. شام کے اندر سارے شرابی پتہ نہیں کون کون آئے ہوئے تھے. امام سورہ حمد پڑھ سکتے تھے تاکہ سب کو پتہ چلے یہ قرآن ہے، کیونکہ زبان تو عربی تھی. امام زبان سے لفظوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں یا کوئی کلام کر رہے ہیں، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کون سی آیتیں تھی؟ آیا سورہ حمد پڑھی تھی؟ امام کچھ بھی پڑھ سکتے تھے. توجہ چاہتا ہوں، امام آیت
غدیر بھی پڑھ سکتے تھے، امام سورت کوثر بھی پڑھ سکتے تھے، امام سورہ مومنون بھی پڑھ سکتے تھے، امام سورہ منافقون بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن اتفاق سے سب نے لکھا، شیعہ سنی علماء نے، کہ امام نے سورہ کہف پڑھی۔ آخر کیوں؟ اس سورت کے اندر کیا خاص ہے؟ ایک ایک لفظ پہ توجہ کیجئے گا، 2 منٹ کے لیے دعوت فکر ہے، اس کے بعد آپ مجھے انشاءاللہ دعا بھی دیں گے، بات آسان ہو جائے گی۔ 2 منٹ کے لیے مشکل بات کو برداشت کریں۔ سورہ کہف پڑھی امام نے، سورہ کہف۔ اب سورہ کہف کے اندر کیا خاص ہے جس کی وجہ سے امام نے اس کا انتخاب کیا؟ کیونکہ دیکھیں، یاد رکھیں، مجھ جیسا چھوٹا سا طالب علم، ایک چھوٹا سا ذاکر، ایک چھوٹا سا خطیب، ایک کراچی سے آیا ہوا چھوٹا سا پڑھا لکھا آدمی، یا کوئی بھی عالم، کوئی بھی ذاکر جب بیٹھتا ہے، جس چیز کا انتخاب کرتا ہے سوچ کے کرتا ہے کہ بھائی نیوٹ میں پڑھ رہے ہیں تو یہ پڑھنا ہے، فیصل آباد میں پڑھ رہے ہیں تو یہ پڑھنا ہے، لاہور میں پڑھ رہے ہیں تو یہ پڑھنا ہے، اس کو سوچ کے پڑھتا ہے۔ غور کیجئے گا، امام کا سورہ کہف پڑھنا کیوں تھا؟ توجہ چاہتا ہوں، شیعہ سنی دونوں علماء نے لکھا کہ سورہ کہف کا شان نزول کیا ہے۔ غور کیجئے گا کہ جب قرآن نے چیلنج کیا کہ اس ایک آیت کا جواب لاؤ، اس ایک سورت کا جواب لاؤ، اس کے 10 سپاروں کا جواب لاؤ، پورے قرآن کا جواب لاؤ، جب سارے کافر، مشرک، منافق لاجواب ہو گئے تو مجبوراً سب کے سب یہودیوں کے پاس چل کے گئے۔ آپ کی توجہ رہے، یہ سن 2025 ہے، یہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سب چل کے گئے یہودیوں کے پاس کہ اب ہماری اسلام کے مقابلے میں مدد کرو۔ یعنی جب کبھی منافقوں پہ وقت آتا ہے، وہ مومنوں کے مقابلے میں یہودیوں سے مدد مانگتے ہیں۔ یہودیوں کے پاس گئے، یہودیوں نے ان کو 3 سوالات دیے۔ پہلا سوال یہودیوں نے دیا کہ آپ جائیں رسول سے پوچھیں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین کون تھے۔ دوسرا سوال دیا یہودیوں نے، جائیں آپ حضور سے روح کے بارے میں پوچھیں۔ تیسرا سوال یہودیوں نے دیا کہ آپ جائیں رسول سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھیں۔ میں بالکل جلدی سرچ کر رہا ہوں۔ یہ 3 سوال یہودیوں نے بنا کے دیے کفار کو، یہودی خود نہیں آئے، یہودیوں نے کفار کو بھیجا، جاؤ حضور کے پاس۔ یہ حضور کے پاس سوالات آئے، اس کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی، اور اسی سورہ کہف کا امام نے انتخاب کیا۔ اب سورہ کہف جب نازل ہوئی، اس کے اندر 3 ایسے مضمون ہیں جو صرف اور صرف پورے قرآن میں، صرف اور صرف سورہ کہف میں اور کسی میں نہیں۔ مثلا آپ سورہ بقرہ کھولیں، سورہ بقرہ میں آپ کو حضرت آدم کا قصہ مل جائے گا، یہ قصہ آپ کو کہیں اور بھی ملے گا۔ آپ کو حضرت نوح کا کہیں قصہ ملے گا، وہ کہیں اور بھی ملے گا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا قصہ آپ کو بار بار ملے گا، لیکن اس سورہ کہف میں 3 مضمون ایسے ہیں جس کا امام نے انتخاب کیا، وہ صرف اور صرف سورہ کہف میں۔ پہلا مضمون اصحاب کہف۔ اصحاب کہف کا مضمون کو امام نے کیوں اٹھایا؟ اس لیے امام نے اصحاب کہف کے مضمون کو نوک سنا پہ اٹھایا۔ توجہ چاہتا ہوں کہ یہ اصحاب کہف ہیں جو رب کے ولی ہیں، جنہوں نے رب کے لیے دنیا کو چھوڑا ہے، قیامت تک ان کا نام باقی رہے گا۔ اور تم یاد رکھو، جیسے اصحاب کہف دنیا کو چھوڑ کر کامیاب ہیں، ایسے حسین ابن علی شہادت پا کے کامیاب۔ دوسرا موضوع، ابھی جب بات کھلے گی نا آپ کو لطف آئے گا، کبھی یہ بھی سنا کریں، سخت موضوع مجھے معلوم ہے، آج کی بات تھوڑی سی مشکل ہے، میں نے ابھی تک آپ کے سامنے کوئی مشکل بات نہیں کی، آج کی بات تھوڑی سی مشکل ہے، برداشت کریں گے انشاءاللہ، لیکن آگے آپ کو لطف آئے گا۔ دوسرا مضمون کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، قرآن میں جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ جناب موسیٰ ہیں، بار بار ذکر ہے، لیکن جناب موسیٰ کا ایک مضمون ایسا ہے جو صرف سورہ کہف میں بس۔ جناب موسیٰ کا فرعون سے ذکر بار بار، جناب موسیٰ کا بنی اسرائیل سے ذکر بار بار، جناب موسیٰ کے معجزات کا ذکر بار بار، لیکن ایک مضمون ایسا ہے جو صرف اور صرف سورہ کہف میں، وہ کیا ہے؟ جناب موسیٰ اور جناب خضر کی ملاقات، کہ جناب موسیٰ کو حکم ہوا
قرآن ہے، شیعہ سنی سب متفق ہے کہ جناب موسیٰ کو حکم ہوا جاؤ اس عبد سے علم حاصل کرو، اور ان کا سفر شروع ہوا۔ توجہ چاہتا ہوں، ان کا سفر شروع ہوا۔ جناب خضر کہتے ہیں آپ تب تک میرے ساتھ رہیں جب تک صبر کریں۔ یہ ہے جناب موسیٰ جو اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر، انہیں حکم ہو رہا ہے ولی خدا جناب خضر سے تعلیم حاصل کریں۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ مسجد کوفہ میں علی ممبر پر موجود ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ممبر پر موجود ہیں، علی لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ ایک طرف حسن ہے، ایک طرف حسین ہے، ایک سفید ریش شخص ہے جو کبھی حسن سے پوچھتا ہے کبھی حسین سے پوچھتا ہے۔ حضرت میثم تمار نے پوچھا یا علی آپ سب کو بتا رہے ہیں یہ بندہ آپ سے نہیں پوچھتا، کبھی حسن سے پوچھتا ہے کبھی حسین سے پوچھتا ہے۔ امام فرماتے میثم یہ میرا بھائی خضر ہے جو آ کر کبھی حسن سے پوچھتا ہے کبھی حسین سے پوچھتا ہے۔ خدا کی قسم یہ کمال ہے اہل بیت کا۔ جناب موسیٰ کو جس کے پاس جانے کا حکم ہو اسے خضر کہتے ہیں، اور خضر جس کے دروازے پر آئے اسے حسن اور حسین کہتے ہیں۔ ولی خدا یہ شراب خضر صرف اور صرف اس در مضمون اور کہیں بھی نہیں، اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جناب خضر آج بھی حیات ہیں، ایسا ہی ہے نا، کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا نا۔ جناب خضر جب آئیں گے، حجت خدا آئیں گے تو مصلی پر کون ہوگا؟ خضر ہوگا یا مہدی ہوگا؟ مہدی ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ شریعت محمدی ہے، محمد کا وارث خضر نہیں مہدی ہے، شریعت محمدی ہے، خضر نہیں ہے۔ جناب امام زمان آئیں گے اور وہ کس کے فرزند ہیں؟ امام حسین کے۔ بس ایک مضمون اصحاب کہف کا، غور کیجئے گا، میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ دوسرا مضمون جناب موسیٰ اور جناب خضر کا۔ تیسرا مضمون جناب ذوالقرنین کا۔ جناب ذوالقرنین کون؟ ولی خدا۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر ان تینوں سے ہم چیز نکالیں، اصحاب کہف، غور کیجئے گا، ذوالقرنین، جناب خضر، ان تینوں کو اگر ایک لفظ میں جمع کریں تو بنتا ہے ولی اللہ۔ امام نے سورہ کہف کو پڑھ کر بتا دیا، سنو یہ جنگ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ رب کے ولی کی دنیا کے ولی کے ساتھ ہے۔ رب کے ولی حسین ہے۔ اور یاد رکھیں ابھی بھائی والے آئے تھے ہمارے پاس، ان سے بھی بہت اچھی ملاقات رہی۔ میں نہایت ہی ادب اور احترام سے یہاں پہ رک کے ایک جملہ آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ خدا کی قسم یہ نہ کسی سے ڈر سے ہے نہ کسی کے خوف سے ہے، یہ ممبر کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو 10 دن ہے یا یہ جو 2.25 مہینے، اس میں آپ اور میں امام حسین کے مبلغ ہیں، ہم تبلیغ کرنے والے ہیں۔ جب ہم باہر جائیں لگے کہ حسین کا عزاد آ رہا ہے، جب ہم باہر جائیں جلوس میں جائیں عزاداری کریں علم اٹھائیں لگے کہ ہم امام حسین والے ہیں۔ ایک چھٹے امام کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے زرارہ ابن قائن، نام یاد رکھیے گا۔ اتنی عظیم صحابی ہیں کہ چھٹے امام نے ان کی تعریف کی ہے، بس اتنا سن لیں۔ یعنی کائنات میں بہت چند لوگ ہیں جن کی امام نے خود تعریف کی ہے۔ امام کی تعریف سب نے کی، یعنی جن کی امام تعریف کرے ہاں یہ ہے، مثلا مالک اشتر، میثم تمار، بہت کم لوگ ہیں۔ حبیب ابن مظاہر جن کی خود امام تعریف کرے، ان میں سے کہ زرارہ ابن عائن۔ توجہ چاہتا ہوں، زرارہ کہتے میں نے مولا سے پوچھا مولا آپ کا کون سا چاہنے والا، آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں، آپ کو کون سا چاہنے والا پسند ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے مجھے وہ چاہنے والا پسند ہے جو ہماری تبلیغ زبان سے نہیں اپنے عمل سے کرے، اپنے عمل سے کرے، اپنے عمل سے کرے، اپنے کردار سے کرے۔ عزیزان محترم، جب آپ چل رہے ہو یہ اس کا جلوس ہے جو نمازی تھا، یہ اس کا جلوس ہے جس کی مائیں بہنیں حجاب کرتی تھی، تو ہمارے اندر وہ خوشبو آنی چاہیے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے ذات۔
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़न मोहतरम, ये था असहाब कहफ के हवाले से जो सूरह इमाम अलैहिस्सलाम ने तिलावत की। अब हम आगे चलते हैं। आज का दिन मंसूब खास, मैं मसाइब से पहले कुछ फज़ाइल अर्ज करना चाहता हूं, आपकी तवज्जो रहे, लुत्फ आएगा। खास मंसूबे शहजादे का गौर कीजिएगा। शहजादे अली अकबर, आपने मसाइब सुने, मैं मसाइब से पहले थोड़े से 10-12 मिनट मुझसे फज़ाइल सुन लें शहजादे के। एक सवाल है, अली अकबर का वजूद, मैं अपनी तरफ से जुमला नहीं कह रहा, सात इमाम का फरमान है, फरमाया अली अकबर की विलादत इमाम हुसैन की, तवज्जो चाहता हूं आखिरी बंदे तक, इमाम हुसैन की इमामत पर बड़ी दलील थी। बड़ी दलील, बड़ी दलील। आप कहेंगे कैसे? फरमाया उस वक्त सहाबा जिंदा थे, सहाबा नहीं खत्म हुए थे, सहाबा का वजूद बाकी था। सारे सहाबा आकर इमाम हुसैन के बेटे को देख कर कहते थे, खुदा की कसम हुसैन का बेटा ऐसा है जैसे नबी मुकर्रम का चेहरा था। ये बड़ी दलील थी। एक दिन हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी, बहुत बड़ा साहबी, सरकार सैयद शोदा की कब्र का पहला जायर, दूर से आने वाला, 7 मासूमीन की जियारत करने वाला जनाब जाबिर, अजीम साहबी, मैं रुकना नहीं चाहता। एक दिन आया, गौर कीजिएगा, कहता है ए सरकार सैयद शोदा, गौर कीजिएगा, ए सरकार सैयद शोदा, बहुत बड़ा फजाइल है इसमें, बहुत बड़ा तवल्ला भी है, बहुत बड़ा तबरा भी है। का ए सरकार सैयद शोदा, मेरे दिल की ख्वाहिश है कि आप मदीने में अली अकबर को लोगों के पास लेके जाएं और लोगों को बताएं, सुनो तुमने नबी देखा था, आज देखो उसकी सूरत जिसके नसब में मौजूद है उसे हुसैन इब्न अली कहते। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। ये जुमले हैं जनाब जाबिर के। अब इमाम हुसैन का जवाब सुने। इमाम हुसैन कहते, जाबिर, जाबिर अल्लाह का एहसान है जिसने मुझे अकबर जैसा शबीह पैगंबर बेटा दिया है, लेकिन जाबिर तुम खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताओ, क्या तुम्हें मेरे चेहरे पर वो नजर नहीं आता जो नबी के चेहरे पर नजर आता था? कहा मौला आता है, आप नबी से शबाहत रखते हैं, आप नबी के बेटे हैं, आप नबी के नूर हैं, आप नबी के नवास है। जाबिर रोने लगा। कहा मौला मेरे कहने का मकसद ये नहीं है, आप नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं लोगों को कि हुसैन जो हकीकी तौर पर वारिस रसूल है, जो जन्नत के जवानों का सरदार है, तवज्जो चाहता हूं, वो अजीम तर है, लेकिन खुदा ने जो हुसैन को बेटा दिया है वो भी आम आदमी नहीं है, वो भी शबीह पैगंबर है। इमाम फरमाते, जाबिर काश तुम इस बात को समझ लेते, हमारी विलायत को कबूल करना इतना आसान नहीं है। लोग एक एक दलील को देखकर भी हमारी विलायत को ठुकरा देते हैं। हमारी विलायत सिर्फ वही कबूल करेगा जिसकी नफ्स में भी तहारत होगी, जिसके शजरे में भी तहारत। हर किसी को कबूल नहीं कर सकता, हर शख्स कबूल नहीं कर सकता, हर शख्स को समझ में नहीं आ सकती विलायत। हजरत अली अकबर के 4 खुतबे तारीख ने लिखे, 4 खुतबे। पहला खुतबा शहजादे अली अकबर का मदीने का लिखा गया। उस शहजादे अली अकबर का मुख्तसर खुतबा, मुख्तसर आपकी तो मेरी तरफ से मुख्तसर खुतबा। आपने शुरू के दिन में मुझसे फजाइल बहुत सुने, आज इस मजमून को सुनो। सबसे मुख्तसर खुतबा मदीने में शहजादे अली अकबर का, 3 जुमले। पहला जुमला कहते हैं, तमाम तारीफें उस रब की जिसने हमें उस घर में करार दिया जिसमें नजासत का तस्वुर ही नहीं है। पहला जुमला। दूसरा जुमला, शहजादे अली अकबर कहते हैं, मैं अपने आप को उस हुसैन इब्ने अली पर कुर्बान करने के लिए आमादा करता हूं जिस पे कुर्बान होना खुद रसूल पर कुर्बान होने के बराबर। समझना चाहता हूं। तीसरा जुमला अली अकबर का मदीने में, 3 जुमले कहते, लानत हो उन लोगों पर जो हक को जानने के बावजूद भी उससे मुंह मोड़ लेते। 3 जुमले अली अकबर। दूसरा खुतबा अली अकबर का मक्के में,
4 ज़िलहज को, अभी तक एहराम हज के उम्रे में तब्दील नहीं हुए, एक जुमले का खुतबा अली अकबर का, एक जुमले का, फरमाते सुना था अपने बाबा से कि लोग सफेद को काला कहते हैं, लेकिन आज देख लिया कि लोग बातिल को हक कहते हैं। यानी लोगों ने हक को ऐसे छुपा दिया है कि जो बातिल है उसे हक कह रहे हैं। वाज़िह सबूत। एक शख्स ने पूछा, ए फर्जंद रसूल के फर्जंद, बताएं क्या कहना चाहते हैं? फरमाया, इस वक्त हक ऐसे वाज़िह है जैसे सूरज वाज़िह होता है, उसके बावजूद लोग इससे मुंह मोड़ रहे हैं। तीसरा खुतबा अली अकबर का, 10 मुहर्रम को तलवारों के साए में जब अली अकबर ने अपना तारुफ कराते हुए कहा, तवज्जो चाहता हूं, दुश्मनाने हैदर, दुश्मनाने अली, तवज्जो चाहता हूं, मुझे देखो मैं भी अली हूं और मेरे बाबा का नाम हुसैन है और मैं हाशमी खून हूं। और हजरत अली अकबर कहते, सुनो मैं तुमसे ऐसे लड़ूंगा जैसे मेरे जद अली लड़ा करते। एक शख्स आता है आखिरी दिनों में, शब आशूर का किस्सा या 8 मुहर्रम का किस्सा, इमाम की खिदमत में, मौला मैं एक इल्तजा लेकर आया हूं, तवज्जो चाहता हूं, मैं एक इल्तजा लेकर आया हूं। मौला ने कहा हुक्म करो। कहा मौला आप सबको कह रहे हैं तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। मौला मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं आप अली अकबर को वापस भेज दे, तवज्जो चाहता हूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको मना नहीं किया, उसको कुछ गलत नहीं कहा, उसकी नीयत पे शक नहीं किया। इमाम कहते हैं, सलाम हो तुझ पर, तू मेरी औलाद को बचाना चाहता है, अल्लाह तुम्हारी जुर्रियत को कयामत तक बाकी रखे, तवज्जो चाहता हूं। लेकिन इमाम के जो जुमले हैं वो जुमले समझिएगा ताकि आपको अंदाजा हो अली अकबर क्या है। इमाम कहते हैं, क्या तुम्हें बताऊं नहीं, इस मार्के में, इस करबला में अली अकबर की हैसियत वो है जो दीन के अंदर अदल की हैसियत। ये अली अकबर अहम तरीन शख्सियत, हजरत अली अकबर। अल्लाह ताला ने अली अकबर जैसा बेटा हुसैन को दिया। और याद रखे अज़ादारों, जब भी बेटे की बात आती है ना, थोड़ी देर के लिए मसाइब से पहले इसको तसव्वुर करें और उसके बाद मसाइब की तरफ चलते हैं। बेटा अजीज तर होता है, बेटा बहुत प्यारा होता है, लेकिन याद रखिएगा, आज के दौर में एक जुमला कह रहा हूं मैं आपकी खिदमत में, माफ कीजिएगा किसी को गिरां गुजर जाए। बेटों की जहां तालीम की खिदमत फिक्र करते हैं, वहां उनकी तरबियत की फिक्र करें। आपने बच्चे को डॉक्टर तो बना दिया, बच्चे को इंजीनियर तो बना दिया, अगर बच्चे की तरबियत न की तो उस घर में आपकी जगह नहीं होगी। औलाद की तरबियत कैसी की जाए? जैसे हुसैन ने की। बेटा है शबीह पैगंबर, बेटा है जवान है, लेकिन बाप कहता है, बाबा बेटा क्या मर्जी है? कहा बाबा मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपकी मोहब्बत में अपना जिस्म कुर्बान कर दूं। अज़ादारों, अभी यहां से सुबह ताबूत निकला होगा, आपने ज़ियारत की होगी, जी भर के गिरिया करेंगे अगर आप तक ये रिवायत पहुंच गई। हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर ने इमाम हुसैन से पूछा, हुसैन इब्न अली, अली अकबर के बारे में क्या कहते हैं आप? मौला फरमाते हैं, हबीब जब से नाना की वफात हुई थी ना, मैं नाना की कब्र पे जाता था और नाना से कहता था, नाना आपकी याद सताती है, नाना हुसैन आपको याद करता है। का फिर क्या हुआ? फरमाया बरसों बाद, हफ्तों बाद नहीं, महीनों बाद नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, बरसों बाद खुदा ने मेरी दुआ को कबूल किया। अल्लाह ने मुझे ऐसा बेटा दिया जिसे मैंने हाथों पे लेकर सर से जब कदमों तक देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बहन को बुलाया और बुला के कहा, ज़ैनब अकबर देखो मोहम्मद मुस्तफा की शबीह है। हाँ आज़ादारों, अली अकबर ने बोलना शुरू किया। जब अली अकबर बोलते थे,
इमाम हुसैन खुश होते थे और खुश होकर फरमाते थे, बहन देखो नाना ऐसे बोला करते थे। अज़ादारों, अल्लाह आपकी औलाद को सलामत रखे। अली अकबर ने चलना शुरू किया। जब अली अकबर चलते थे, मेरे मौला साथ साथ चलते थे और चलते चलते कहते थे, ज़ैनब नाना ऐसे चला करते थे। उम्मे लैला की रिवायत है, ताकि आपको अंदाजा हो कि हुसैन को अकबर से कितनी मोहब्बत थी। अज़ादारों, बीबी कहती है, मैं अकबर को झूले में सुलाती थी और मेरी जब आंख खुलती थी, मैं अकबर के झूले पर किसी परछाई को महसूस करती थी। मैं तड़प के उठती थी। मैं कहती थी, कौन है? आवाज आती थी, लैला आहिस्ता बोलो, मैं हुसैन हूं। मैं कहती थी, मौला मौला मैं हाजिर हूं, आप क्यों आए? तड़प के कहते थे, लैला सोना तो चाहता हूं, अकबर की मोहब्बत सोने नहीं देती। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। अज़ादारों, सुन्नी उलमा ने लिखा कि जब अकबर का सर यजीद के सामने आया था ना, आपको अंदाजा हो कि दर्द कितना था। क्या ये किसका सर है? क्या ये हुसैन के बेटे का सर है? क्या बताओ, ये हुसैन से पहले कत्ल हुआ था या बाद में? क्या ये हुसैन से पहले कत्ल हुआ था? क्या तुम जो कहते हो हमने हुसैन को 13 ज़रबों से मारा था? बताओ, जिस बाप का ऐसा बेटा कत्ल हो जाए उसको मारने की जरूरत नहीं। आवाजों को आजाद छोड़े, शर्मा के न रोए। ये तो बाप के लिए था ना। मां के लिए औरतें क्या करती थी मालूम है आपको? मां बहनों तक आवाज जा रही है कि जब शाम में अली अकबर का सर बुलंद हुआ, शामी औरतें कहती थी, काश इसकी मां मर गई हो। आवाज आती थी उम्मे लैला की, उम्मे लैला जिंदा। हाँ ज़दारो, आपने माहौल बना दिया। अली अकबर की शब आशूर हुई। कभी अली अकबर हजरत अब्बास के साथ है, कभी जनाब लैला के पास है, कभी जनाब ज़ैनब के पास है। मौला ने कहा, अकबर का जी बाबा, जी बाबा का अकबर मेरी ख्वाहिश है। का बोलो बाबा। का अकबर मेरी तमन्ना है। का हुक्म बाबा। का अकबर मेरी इल्तिजा है। का हुक्म बाबा। का अकबर सिर्फ तेरी नहीं, मेरी बहनें भी चाहती हैं। का क्या बाबा? का आज आजान ऐसे दो कि लोगों को लगे नबी की आजान है। अकबर आज आजान दो, नबी की आजान लोगों को लगे। मौला तड़प के कहते, अकबर दोगे? मौला कहते, बाबा मेरी इल्तिजा सुनेंगे? का हुक्म अकबर। का अकबर कहते, बाबा आजान करबला तक नहीं, आजान मदीने तक जानी चाहिए, ताकि लोगों को लगे अकबर आजान दे रहा है। आजादार हो, अली अकबर ने आजान कही, बुलंद आवाज से गिरिया करना चाहिए। मैंने नजफ में एक मुश्तरी से सुना था कि जब अकबर का मसाइब पढ़ा जाए, ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे पे रोती है। फरमाया, अगर अकबर के मसाइब पर कोई नहीं रोता, आवाज आती है, तू न रो, तुमने अकबर को गिरते हुए छोड़ी। आजादारो, अली अकबर ने आजान दी। अल्लाह आपको सलामत रखे। गिरिया करें, जी भर के गिरिया करें। अकबर ने आजान दी। अकबर की आजान पर मदीने में बीबियां रोई, करबला में ज़ैनब रोई। ज़ैनब तड़प के कहती थी, अकबर एक आजान 19 रमजान की थी, एक आजान। अकबर की आजान खत्म हुई, नमाज की सफ़े लगी, मेरे मौला ने नमाज पढ़ाई, नमाज खत्म हुई, अकबर आगे बढ़े, बाबा मरने की इजाजत। इमाम ने कहा, तकद्दम बलदी, अकबर चाहो। अज़ादारो, सहाबा ने कहा, हमारे होते नबी की सूरत बाबा हम जाने नहीं देंगे। अज़ादारो, सहाबा कत्ल हो गए। उसके बाद इमाम के पास आए, बाबा जाओ। फरमाया, तकद्दम बलदी, अली की औलाद ने रोक लिया कि हम जाने नहीं देंगे। अज़ादारो, जब कोई न बचा, अकबर आए,
आकर कहते हैं बाबा जाओ। गरीब ने दाएं देखा, गरीब ने बाएं देखा, शायद कोई अकबर को रोक ले। जब कोई रोकने वाला नजर नहीं आया, अल्लाह तुम्हें करबला ले जाए। जब मैंने ये रिवायत करबला में मौला के हरम में पढ़ी थी, खुदा गवाह दिल फटता है। गरीब कहता है अकबर इरहमू गुरबतना, अकबर मुझे गरीब पहले। अकबर जाओ जाओ पुप्पी से इजाजत लेकर आओ। अकबर पुप्पी के पास आए, पुप्पी के कदमों पे हाथ रखा, कहते पुप्पी मैं एक सवाल पूछूं? का पूछो अकबर। का आप अफजल हैं या दादी ज़हरा? अज़ादारो ज़हरा का नाम आया, ज़ैनब खड़ी हो गई, कहती है ज़हरा मेरी आका ज़ादी है, मैं कनीज हूं। अकबर ने हाथ चूम के कहते कनीज के बेटे को ज़हरा के बेटे पर कुर्बान कर दो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं भी शहादत में नहीं पूछा, जी भर के रोइएगा, अगले बरस वही रोएगा जो जिंदा होगा। खुदा की कसम जब जवान रोते हैं ना, बीबियां दुआ देती है, कहते काश ये होते सकीना के गोहर न छिनते। अल्लाह तुम्हें किसी को मिल रहा है, अल्लाह तुम्हें किसी को मिल रहा है। आजादारो बीबी से इजाजत ली, बीबी कहती है जाओ उम्मे लैला के पास जाओ। आजादारो उम्मे लैला के पास आए। अल्लाह हर मां को बेटे की खुशी दिखाए। जब उम्मे लैला के पास आए, उम्मे लैला कहती है खबर हर बरस मैंने तेरी शादी की तैयारी की थी। अकबर अकबर ये लिबास है, अकबर ये फौज लूट लेगी, अकबर शामी लूट के चले जाएंगे। अकबर मैंने उनके लूटने के लिए नहीं बनाए थे। अकबर देखते जाओ। अकबर ने एक एक लिबास देखा, अज़ादारों देखते जाते थे, रोते जाते थे। इतने में एक लिबास बीबी ने पहनाया जिस पे आयतें लिखी हुई थी। इमाम हुसैन तशरीफ लाए, बेटे के सर पे अमामा बांधा, कभी यासीन पढ़ते थे, कभी रहमान पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते जब तहतुल हनक को नीचे किया, तड़प के कहते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारो अली अकबर को लेकर इमाम उस खेमे में आए जिसमें बीमार करबला थे। का सज्जाद से अलविदा करो। अज़ादारो इमाम सज्जाद के कदमों पे अली अकबर ने हाथ रखे। इमाम सज्जाद की आंखें खुली, अकबर को आमादे सफर देखा। बोला तड़प के कहते इस मंजर को समझिएगा, घर तक गिरिया करेंगे। इमाम सज्जाद ने ये मंजर देखा, तड़प के कहते बाबा अकबर कहाँ जा रहा है? बाबा 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 अकबर कहाँ जा रहा है? तड़प के कहते हैं सज्जाद अकबर शहादत के लिए जा रहा है। बीमार उठे, तड़प के कहते हैं बाबा मुझे भेज दो, अकबर को बचा लो, मुझे भेज। या हुसैन यह के गरीब को रोने का, खुदा की कसम यह के गरीब को रोने का। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी औलाद को सलामत रखे। कहा कि मुझे भेज दो, अकबर को बचा लो। गरीब ने अकबर को देखा, सज्जाद को देखा, तड़प के कहते सज्जाद अकबर छोटा है, इसकी कुर्बानी छोटी है। सज्जाद तू मेरा बड़ा बेटा है, तेरी कुर्बानी बड़ी है। का बाबा शहादत से बड़ी कुर्बानी क्या है? गरीब ने सीने से लगा के कहा माओ के साथ बाजार जाना, बहनों के साथ दरबार जाना। अकबर की बर्छी एक लगेगी तुम्हें शिमिक। अकबर आए, अकबर आए, अकबर आए, अज़ादारो अकबर आए। हमीद इब्न मुस्लिम की रिवायत है, जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। ताकि हमीद कहता है 19 मरतबा खेमे का पर्दा उठाओ, खेमे का पर्दा गिरा। कभी कोई बीबी अबा थाम लेती थी, कभी कोई छोटी शहजादी कदमों से लिपट जाती थी, तड़प के कहती थी अकबर उजड़ गया मदीना। अकबर रवाना हुए, अकबर रवाना हुए। अकबर ने क्या महसूस किया? पीछे किसी के कदमों की आहट 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 महसूस की। जैसे आहट महसूस की, पीछे मुड़ के देखा, क्या देखा? बूढ़ा बाप टूटी हुई कमर थामे, तड़प के कहता है अकबर आहिस्ता, अकबर आहिस्ता। अकबर कहता है बाबा आपने तो इजाजत दे दी। गरीब कहता है अकबर काश तेरा भी कोई बेटा होता।
हौसले सुने, बहुत वक्त है। अदादार अकबर आए, अकबर ने जंग करना शुरू की। इमाम दाद देते थे, अकबर ऐसे लड़ो, अकबर ऐसे लड़ो, अकबर ऐसे हमला करो, अकबर ऐसे हमला करो। अजादारों, गरीब के दिल में तमन्ना जागी, मेरा अकबर पलट मेरा अकबर पलट आए, गरीब खेमे में आए, आके के तुम्हें ले लाओ, मेरे नाना से सुना था माँ की दुआ रद्द नहीं होती, और मेरे लिए दुआ करो, मेरा अकबर पलट आए। और मेरे ने कहा है याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, मेरा अकबर पलट। माँ की दुआ कबूल हुई, माँ की दुआ कबूल हुई। अकबर वापिस आए, आके कहते बाबा, बाबा प्यास ने मार दिया है, बाबा प्यास ने मार दिया है, बाबा पानी मिलेगा? गरीब ने यह नहीं कर, नहीं मिलेगा। अकबर को सीने से लगाया, अकबर मेरी जबान अपने मुंह में रखो। जैसे अकबर ने मौला की जबान मुंह में रखी, अकबर की चीख निकली, तड़प के कहते बाबा आप कितने दिनों के प्यासे हैं? बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हैं। का अकबर जाओ, आजादारो अली अकबर गए, अली अकबर ने जंग की। जंग करते करते शब्बीर का चांद बादलों में छुप गया, शब्बीर को नजर नहीं आया। शब्बीर कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है। इतने में अकबर की आवाज आई, बाबा बाबा मेरा आखिरी सलाम। आजादारो शब्बीर चले। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं अकबर के जनाजे पर पैरों से नहीं गए, कभी कोहनियों से चलते थे, कभी सीने के बल चलते थे, तड़प के कहते थे दिल पर आवाज लो, मेरे दिल पर। अकबर के पास पहुंचे, अकबर के हौसले सुने, 2-3 रिवायत और सुने। अकबर के पास पहुंचे, जब अकबर के पास पहुंचे, कैसे पहुंचे मालूम है? कभी कातलों से पूछते थे बताओ मेरे बेटे को कहां मार रहा है, कभी उससे पूछते थे, कभी इधर जाते थे। अकबर के पास पहुंचकर कहते अकबर 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 चलो, अकबर अकबर मैं तुम्हें खेमे लेके जाऊंगा। अजादारों अकबर ने कहा बाबा उठा लो मुझे, बाबा मुझसे उठा नहीं जा रहा। मौला ने कहा अकबर मैं बूढ़ा हूं, तू जवान है, अपने हाथ मेरी गर्दन में डाल, अकबर मैं तुम्हें उठा लूंगा। अकबर ने एक हाथ उठाया, दूसरा नहीं उठाया। मौला ने कहा अकबर क्या हुआ? का बाबा जालिम ने बर्छी तोड़ दी है। मैंने बर्छी का लगना नहीं पड़ा, मैंने जिंदगी में कभी बर्छी का लगना नहीं पड़ा, आज निकालना पड़ रहा, लगना आज भी नहीं पड़ा। गरीब ने कहा अकबर 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 मैं फख्रे इब्राहिम हूं, अकबर तू फख्रे इस्माइल है। गरीब ऐसे बैठा जैसे तशहुद में नमाजी बैठता है। नजफ का रुख किया, तड़प के कहते बाबा दर खैबर आसान था, बेटे के सीने से बर्छी खींचना बहुत मुश्किल है। अकबर के सीने से बर्छी खींची, कलेजा फटा, अकबर की सांसें टूट। गरीब ने कांपते हुए हाथों से अकबर को उठाया, तड़प तड़प के कहते थे हाय अकबर हाय अकबर हाय अकबर। अजादारों कभी बच्चों को बुलाते थे, आओ मुझसे, अकबर नहीं उठता, बच्चों से उठाया, कभी अकबर के हाथों से खींचा, अकबर के कदम जमीन पे खत खींच रहे थे, अकबर को लेकर आए। सब बीबियां आई, सबसे पहला बेन एक 4 साल यतीमा ने किया, कहती अकबर काश बीबियां मदीने में रह गई, अकबर तेरा सीना, अकबर अकबर तेरा सीना छलनी हो गया। फिर बीबी ज़ैनब आई, अकबर के चेहरे पर आकर कहती है अकबर 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 मैंने एक बाबा का जख्म देखा था, बाबा का सर जख्मी था, एक मां का जख्म देखा था, लेकिन अकबर ये जो तेरा जख्म है ऐसा। मौला ने कहा सब आए, सब आए, हौसले सुने, हौसले, 2 रिवायत सुने, मजलिस मुकम्मल हुई। अज़ादार मौला ने कहा सब आए, आईना है ना उम्मे लेला, उम्मे लेला कहा है? फिजा जाओ उम्मे लेला को लेकर आओ। जब फिजा गई उम्मे लेला को लेने, क्या मंजर देखा मालूम है? क्या मंजर देखा? मंजर ये देखा कि फिजा ने उम्मे लेला कभी दाएं जाती है, कभी बाएं जाती है। बीबी कहती है फिजा उम्मे लेला तुम्हें नहीं मालूम अकबर आ गया है। हर मां का हक होता है बेटे का मातम करे, क्या बेटे का मातम नहीं करोगी? तलब के कहती है फिजा मैं ढूंढ रही हूं, मुझे दरवाजा नजर नहीं आता। उम्मे लेला जिस मां का अकबर मारा। एक रिवायत और मशहूर और मारूफ किताब रिवायत ऐसा, जी भर कर रोएंगे। रिवायत ऐसा कहते हैं कि जब शोदा के सर चले ना
जब शियों का इलाका आता था, ये क्या करते थे? सरों को संदूकों में बंद कर देते थे। एक संदूक में अकबर का सर, एक संदूक में कासिम का सर, एक संदूक में अब्बास का सर, एक संदूक में हुसैन का सर। जब तमाशे का वक्त आता था, ये संदूकों से सर निकालते थे, नेज़ों पे बुलंद करते थे। क्या हुआ? जब शाम का दरबार आने लगा ना, इन्होंने सबसे पहले वो संदूक खोला जिसमें हुसैन का सर था। जब संदूक खोला तो उसमें सर मौजूद नहीं था। इन्होंने ताजियाना उठाया, इमाम सज्जाद की पुश्त में मारा, का बता कैदी तेरे बाबा का सर कहाँ है? मौला कहते तुमने कहाँ रखा था? का हमने संदूक में रखा था। का अकबर का सर कहाँ है? का उस संदूक में है। मौला कहते वो संदूक खोलो जिसमें अली अकबर का सर है। अज़ादारों, जब वो संदूक खोला गया, क्या देखा? गरीब का सर अकबर के मुंह से लेता है, तड़प तड़प के कहता अकबर अकबर अकबर। अज़ादारों, जब इमाम सज्जाद तदफीन के लिए गए, मौला के कटे हुए गले से आवाज आई, सज्जाद जिसको जान दफन कर मेरा अकबर मुझसे दूर न करना। मैं कयामत तक अकबर को गले लगा कर कहता रहूंगा, मेरी कायनात उजड़ गई, मेरा अकबर। अल्लाह लानतुल्लाह कौम जालिम।